भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे, दो वरदान हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। Here comes the fruit train. Apple. Orange. Banana. Strawberry. Grapes. Pear. Pineapple. Lemon. Watermelon. Raspberries. Blueberries. Bye, yummy food train. Bye-bye. Hi, kids. Here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Now, repeat after Mother Hen. Here we go. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. Great job. Hello friends, welcome to Reha's world. It's a cycle or bicycle. It's a trin trin trin, trin trin trin. It's a scooter. Here it's coming. Vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. Here it's coming. Vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. It's a car. I'm going to meet my friends on a car. Hey. See my car. It's a bus. The wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus goes round and round all through the town. It's a truck. Here I'm going on a truck. Why? Hey, I'm on train. What train does? Hey, I'm on a boat. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. See, color of water, it's blue.
Hey, it's a ship. It's very big indeed. Hey, I feel like a fish here. Oh, here I can see fishes. Can you see fish? See there. There are so many fishes. They are swimming in the water. Now it's an aeroplane. Wow, it's flying so high. Oh, wow, I like flying. Wow. Hey, it's helicopter. Can you see its fan? See over here. Wow, I'm liking this. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Let's go play. Doo 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 doo. Let's go play. Doo 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 doo. Let's go play. Doo 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 doo. Let's go play. Run away. Doo 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 doo. Run away. Doo 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 doo. Run away. Doo 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 doo. Run away. Hungry sharks. Doo 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 doo. Hungry sharks. Doo 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 doo. Hungry sharks. Doo 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 doo. My name is Reha Sharma. I'm going to write poem. एक था राजा एक थी रानी. एक था राजा एक थी रानी बैठी पालकी पे राजा बैठा भोरे बारिश होई सीधा राजा बैठ के रानी.
Welcome to Reha's world. Today we are going to discuss about UKG syllabus for 2021 to 2022. तो पहले हम इंग्लिश का सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें हमें रीड, रिकॉग्नाइज एंड राइटिंग करनी है A to Z इन कैपिटल फॉर्म, A to Z इन स्मॉल फॉर्म. हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं तो ये दोनों स्मॉल और कैपिटल को इकट्ठा पढ़ाएं ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो लेटर ऑन. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा इकट्ठा ही पढ़ाना चाहिए स्मॉल एंड कैपिटल को. देन मैच विद लेटर्स एंड पिक्चर्स. इसमें हमने क्या करना है, हमने पिक्चर्स लेनी है, देन बच्चे को बोलना है उसको प्रोनाउंस करे और फर्स्ट अल्फ़ाबेट को वो रीड करे. ठीक है, सिमिलरली हमने जो है एक साइड कैपिटल और दूसरी साइड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने और उनको मैच करने को बच्चे को देना है. देन राइटिंग एंड डिक्टेशन ऑफ द 2 lettered वर्ड्स. जब बच्चा लेटर्स अच्छी तरह समझ लेगा देन वी विल मूव टू 2 lettered वर्ड्स. इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, देन एन, बी, टी एंड डी को ऐड कर रही हूँ. एन, एब, एट एंड एड. तो ये देखिए 2 lettered वर्ड बन गए हमारे. देन मिसिंग लेटर्स. अब मिसिंग लेटर्स को 2 वे में हम पढ़ेंगे, आफ्टर एंड बिफोर. अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, ए बी डैश डी. नाउ व्हाट कम्स आफ्टर बी? इट्स सी. सेम एग्जांपल फॉर बिफोर, ए बी dash D. Now what comes before D? It's C. Okay? In this way हम जो है बच्चे को समझाएंगे. तो बच्चे से क्या होता है, जब ये करेगा तो बार बार अल्फ़ाबेट रिपीट करेगा. देन इंट्रोडक्शन ऑफ 3 lettered वर्ड्स. इसके लिए भी ऊपर वाले ही मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ, एन, एब, एट एंड एड. अब इसके आगे मैं लेटर ज्वाइन करूँगी, जैसे कि एम, सी, बी and again B. तो ये देखिए, तो ये देखिए आप, ये 3 lettered वर्ड्स बन गए हमारे. देन इंट्रोडक्शन ऑफ वोवल्स. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को एक्सप्लेन करना. ये सारे वोवल्स, ये 5 लेटर्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये बच्चे को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वर्ड जो है वो इन्हीं के थ्रू बनता है. तो इनकी साउंड्स को बहुत क्लियरली बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहिए. तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश का सिलेबस क्लियर हो गया होगा और आप इजीली जो है इसको अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं इसको लेके. नाउ मूव टू मैथ्स सिलेबस. चलिए मैथ्स के सिलेबस के बारे में भी जानते हैं. फर्स्ट इज़, अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पर 7 टॉपिक्स हैं. एंड फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन एंड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100. तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को काउंटिंग सिखानी भी है, साथ में वो रिकॉग्नाइज भी कर सके, देख के पहचान सके कि कौन सा नंबर है. देन राइटिंग एंड डिक्टेशन. उसके बाद बच्चे का जब उसने रीड करना शुरू कर दिया देन उसको राइटिंग पे हम लेके आएंगे तो बच्चा राइट भी कर सके कौन सा नंबर हम जो बोल रहे हैं. ठीक है. देन व्हाट कम्स आफ्टर. व्हाट कम्स आफ्टर, इसमें क्या है कि कौन सा नंबर किसके बाद आएगा. जैसे 1 2 3, व्हाट कम्स आफ्टर 3. नाउ व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब कौन से नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा. जैसे 1-3, तो इन दोनों के बीच में क्या है वो फाइंड आउट करना है. मिसिंग नंबर, व्हाट कम्स बिटवीन के जैसे ही है ये देखिए, लेकिन इसे हम मल्टीपल ब्लैंक्स देते हैं ताकि बच्चा जो उसको फाइंड आउट कर सके. इन दिस वे क्या होता है कि बच्चा जो है काउंटिंग रिपीटेडली करेगा. ठीक है, उसका बार बार इस पे ध्यान जाएगा. देखिए आपने, नाउ बैकवर्ड काउंटिंग और वी कैन से रिवर्स काउंटिंग. अब इसमें क्या है, हमने इस सेशन में 10 to 0 तक ही करेंगे, तो 10 से लेकर 0 तक वो रिवर्स वे में भी जाएगा बच्चा. देन नंबर्स नेम 1 to 10. जब ये सारा हो जाएगा तो बच्चे को हम जो अब नंबर लिखना सिखाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश में जो उसको नंबर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, सॉरी राइटिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, तो वो राइट करना सीख चुका होगा. तो इन दिस वे ये सारा हम जो है कवर करेंगे. तो अब नाउ मैथ्स के बाद अब मूव करते हैं हिंदी. तो हिंदी में जो सारा सिलेबस है वो वर्णमाला के आसपास ही घूमेगा. तो वर्णमाला अ से ए तक हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अ से
ए तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है राइटिंग, यहाँ राइटिंग पे, ठीक है। हाँ, ये देखिए राइटिंग अ से, अब ये आ और ई के बीच में गैप, ठीक है, इसको बच्चे को फिल करना है। देन चित्र मिलान, चित्र मिलान में क्या होता है कि बच्चे को हम फोटो दे देंगे, देन उसने बोलना है क्या, जैसे आम है तो आ, तो उसके लिए वो आ बोलेगा, ठीक है। तो इस वे में वो करेगा। तो सेम जैसे हमने इंग्लिश में किया था वैसे ही। अब डिक्टेशन, डिक्टेशन में अब जो ये हमने सारे वर्णमाला किया तो बच्चे को अब हम लिखना भी सिखाएंगे, तो वो अपने आप लिखे भी, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट आ जाता है जीके। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। इसमें अब ये देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीजन से। तो सीज़न में जो हम हैं, तो इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं सीजन्स में 4 सीजन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटम, देन समर, देन स्प्रिंग एंड विंटर। फिर उसके बाद हम आएंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये कोई भी 5 आप वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए बच्चे को बता सकते हैं। देन यूज़ ऑफ गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स में जो हम पढ़ेंगे सॉरी, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं इनको हम गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद माई बॉडी। तो माई बॉडी के लिए मैं प्रेफर करूँगी, आप राइम है हेड शोल्डर, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। आप ये बच्चे को जो है ये सुनाएं, तो इन दिस वे बच्चा काफ़ी बॉडी पार्ट्स को याद कर सकता है। देन माई फैमिली, माई फैमिली में आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी बच्चे को हमें बताना ज़रूरी है। देन आता है हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी हैबिट्स में हमारे क्या आता है, स्लीपिंग, स्टडिंग एंड देन ईटिंग। तो ये सारी हेल्दी हैबिट्स हमें बच्चे को बतानी है। देन आ जाते हैं फूड पे। तो फूड पे आ जाता है हमारा एक हेल्दी फूड और जंक फूड। तो ये दोनों ही फूड हमें बच्चे को बतानी है क्या है, और हर एक का एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल बताना है। देन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में हमारा आ जाता है कि हमने जो है बच्चे को बताना है 3 टाइप्स के, लैंड, एयर एंड वाटर। तो इनके भी एग्जाम्पल बताएंगे। देन एनिमल्स एंड देयर बेबीज, जैसे डॉग का बेबी पप। देन इंसेक्ट, बटरफ्लाइज होगी, हाउस फ्लाइज होगी, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आ जाते हैं वाटर एनिमल्स, और वी कैन से एक्वेटिक एनिमल्स जैसे शार्क वगैरह होगी, वो भी हमने बच्चों को बताना है इस सेशन में। देन क्लोथ्स वी वेयर। अब इसमें क्या जाता है, बेसिकली हमने ये बताना है सीज़न के हिसाब से हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन। तो बच्चे को हमने ये चीज़ भी यहाँ पर कवर करनी है। देन मंथ्स ऑफ द ईयर, इसमें जनवरी टू दिसंबर सारे मंथ्स बच्चे को बताने हैं। देन ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। अब हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कराना है बच्चे को, ट्रीज क्या होते हैं, प्लांट्स, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी एक्सप्लेन करने हैं। एंड लास्टली फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स में दिवाली होगी, होली होगी, ये सब जो है हमने बच्चे को बताना है। साथ में इनकी इम्पोर्टेंस बच्चे को बतानी है, क्यों मनाए जाते हैं। तो इन दिस वे हम जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे इस सेशन में। देन अब हम पढ़ते हैं हमारे राइम्स में, इंग्लिश के राइम्स में क्या है। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 22 राइम्स है टोटल, जो बच्चे को इस सेशन में हमने सारा एक्सप्लेन करनी है, पढ़ानी है, और राइम को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में बच्चे को बताना है। तो ये टोटल 22 राइम्स हैं जो हमने बच्चे को इस साल पढ़ाएंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट अगर है तो वो है जैक बी निम्बल। देन 2 लिटिल हैंड्स, इंजन, 2 लिटिल डिकी बर्ड्स, डिंग डोंग बेल, 10 लिटिल फिंगर्स, हे डिडल डिडल,
Are you sleeping? London Bridge is falling down. Teapot. Little Miss Muffin. Wee wee willy winky. Hickty picty. My black hen. Hot cross buns. Mary had a little lamb. Ringa ringa roses. Cobbler cobbler. Baba black sheep. Pat a cake. Incy wincy spider. Seesaw. Little Bo Peep. तो ये टोटल 22 राइम्स इस बार हमने करानी है। तो आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब और हिट करिए, हिट द लाइक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेहास वर्ल्ड। आज हम जो है यूकेजी क्लास और एलकेजी क्लास की कुछ इंग्लिश की वर्कशीट्स पे वर्क करेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगी। ये सारी शीट्स जो भी वर्कशीट्स हैं वो मैंने घर पे रेहा के लिए बनाई हैं। तो आप भी ऐसी शीट्स प्रिंट आउट निकाल के देन उसके साथ जो है आप इसको लैमिनेट कर सकते हैं और इसको अगेन रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो यूज़ किए हैं, मैंने इमेज के साथ साथ में इसका जो है कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है ताकि जो है बच्चा जब पढ़े तो वो दोनों को साथ ही कर सके। जैसे कहाँ पर ये एस है तो क्या ये सिग्निफाई करता है, इससे क्या क्या बनता है। तो ये इस वे में आप बच्चे को जो है डिक्टेशन भी दे सकते हैं, आप बच्चे को फाइंड आउट करने के लिए भी दे सकते हैं। वेयर इज एन लाइक दिस, तो वो सर्कल कर सकता है। ठीक है, और इस वर्कशीट का जो मैंने आपको बोला लैमिनेट करने का ये फायदा है कि आप साथ ही इसको रब करके अगर बच्चे ने गलत किया या फिर आप दोबारा रीयूज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी शीट आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट किया हमने अल्फाबेट से, सारे लेटर्स स्मॉल एंड कैपिटल पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज कराना। ठीक है, जब बच्चा फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर ले देन विल मूव टू राइटिंग पार्ट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट वर्कशीट है जिसमें मैंने राइटिंग पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चे को। इसमें कर्सिव राइटिंग मैंने पहले यूज की है, तो आप देख सकते हैं बच्चा इसके ऊपर भी पहले लिखेगा इन दिस वे। तो वो सारा 1 बाय 1 जो है पूरा जी तक जाएगा और राइट डाउन करेगा, तो साथ साथ बोलेगा भी। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम अगेन राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं। अगेन इसको आप जो है रब करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं इन शीट्स को। ठीक है, अब क्योंकि बच्चा अगर एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा वो बोर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर रेहा के लिए 3 डिफरेंट वे में सेम जो है कर्सिव राइटिंग को ही यूज किया, स्मॉल लेटर्स को। सेम वही चीज है लेकिन बस इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। ये देखिए फिर से 3 डिफरेंट फॉर्मेट आई यूज्ड। सी सेम चीज है लेकिन 3 डिफरेंट वेज में, जस्ट फॉर फन। ओके, देन आ जाते हैं अपर यानी कैपिटल लेटर्स पे। कैपिटल लेटर्स में इसमें मैंने जो है मिसिंग नंबर्स पे फोकस किया। तो जब बच्चे को रिकॉग्नाइज हो जाए, राइटिंग आ जाए, देन हम जो है मूव करेंगे बच्चे के नेक्स्ट कि वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सके। तो जैसे ए बी, देन मूव टू सी, अब डी ई एफ। अब बच्चे को एफ तक जाने के लिए अगेन ए बी सी डी ई देन एफ पे जाएगा। तो इस वे में वो बार बार रिपीट करेगा इसको और वो जो है इस पे लिखेगा। एक तो राइटिंग और साथ में जो है उसको लर्निंग जो है दोनों ही स्किल्स उसकी बढ़ेगी। सेम इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट शीट्स बनाई हैं। एक अपने लास्ट देख ली, अब ये मैंने इसमें फ्लावर शेप में बनाई थी। ये देखिए सेम चीज है लेकिन क्योंकि बच्चे ताकि बोर ना हो इसके लिए मैंने इसको 2 शीट्स बनाई है। अब इसके बाद जब ये चीज हो जाए देन मैचिंग, कि आपने यहाँ पर देखिए कैपिटल इस साइड सारे स्मॉल, तो बच्चा जो है ए कैपिटल ए को स्मॉल ए से मैच करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ है इसको यहाँ तक इन दिस वे। ओके, तो ऐसे ही हम सारा उससे करवाएंगे और वो सारा काम करेगा। अगेन मैं इसको रीयूज करने के लिए इसको वाइट किया। ये देखिए सारे अल्फाबेट्स मैंने सारी शीट्स बनाई है उसके लिए। और ये सारी ही शीट रीयूजेबल है। बच्चा एक बार यूज करने के बाद ये नहीं कि आपको दोबारा बनाने पड़े, दोबारा प्रिंट आउट निकालने पड़े, जस्ट 1 टाइम एफर्ट्स। देन शेप्स,
तो क्योंकि यूकेजी में शेप्स भी आती हैं, तो शेप्स भी बच्चा जो है स्टार्ट करेगा पढ़ना। जैसे ये क्या है, स्क्वायर शेप, देन इस डॉट से यहाँ तक, ऐसे ही ये ओवल शेप लाइक दिस। तो इस वे में भी बच्चा जो है शेप्स को भी लर्न करेगा कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आप अपने घर पे ये सारी शेड्स बना सकते हैं, और ये चीज जो है आप बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंग्लिश की वर्कशीट वाला वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैथ्स, हिंदी की वर्कशीट लेके आऊंगी, और तब हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, पैटर्न को पूरा फॉलो करेंगे। आई होप आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। This is my head, these are my ears, these are my eyes, this is my nose. These are my cheeks, this is my chin, this is my mouth, these are my teeth. This is my tongue, this is my neck, these are my shoulders and these are my hands. This is my elbow, this is my wrist, these are my fingers, this is my chest. This is my stomach, this is my thigh, this is my knee, this is my leg. This is my ankle, this is my foot, these are my toes and these are my body parts.